Welcome back, class 9th. Now today this is the 6th part of History chapter 2. So today we'll be discussing from what changed after October. The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 17 because this nationalization of bank ये लेनिन की एक promise था जो उन्होंने पूरा किया. So most of the banks were nationalized in November 17. This meant that the government took over ownership and management. जो बैंक्स हो या इंडस्ट्रीज हो उनकी ओनरशिप अब किसके पास थी? उनके ओनर्स कौन थे? गवर्नमेंट. ओके, और उनका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के ही पास था. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. ओके, पेजेंट्स को ये अलाउ कर दिया कि वो जो हायर क्लास है, नोबल क्लास है, उनकी लैंड को सीज कर सकते हैं और उस पर अपना जो एग्रीकल्चरल वर्क है वो स्टार्ट कर सकते हैं. मीन्स सी they snatched land of others and they started agriculture themselves. In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements. They banned the use of the old titles of aristocracy. Aristocracy में जो old titles मिले हुए थे, okay, वो सब उन्होंने हटा दिए. जैसे सर या मैडम या और भी कोई जो टाइटल्स थे, ठीक है, वो उन्होंने सब हटा दिए थे. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen. See here you can see in this picture that Soviet hat was totally different. Okay, and they started this kind of hat for all the soldiers. Okay. The Bolshevik party was renamed in Russian Communist Party. Okay, Bolshevik जो पार्टी थी उसका नाम चेंज हो गया था, RCP हो गई थी, Russian Communist Party. In November 17, the Bolshevik conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. ठीक है, but यहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट थी वो इलेक्शन हार गई. In January 18, the Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. He thought the All-Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. Okay, उसने जो असेंबली थी उसको भी डिसमिस कर दी और उसने क्या सोचा कि उनकी जो रशियन कांग्रेस थी वो ही सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी जो बजाय इसके कि जो अनसर्टेन कंडीशंस में जो असेंबली इलेक्ट हुई थी. In March 18, despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. ओके, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क एक प्लेस थी जर्मनी में जहाँ पे कि बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ पीस जो थी वो ट्रीटी साइन की थी. ओके, समझौता कर लिया था. Though they hated from Germany, and that is why they changed the name of St. Petersburg even. Okay, in the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All-Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. अब एक अकेली ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ रही है तो वो ही पार्लियामेंट बन जाएगी. ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स सारे उसी पार्टी के होंगे जिसने कि इलेक्शन फाइट किया और एक ही पार्टी है तो फाइनली that party only win. So Russia became a one-party state. ओके, वन पार्टी स्टेट हो गया. एक ही पार्टी जो थी उसी के मेंबर्स वो पार्लियामेंट में थे. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेस्का फर्स्ट एंड लेटर OGPO एंड NKVD, ये पुलिस को कहा जाता था एक्चुअली. OGPO एंड NKVD punished those who criticized the Bolsheviks, और जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था उनको पुलिस पनिश करती थी. In many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. Many writers also attracted towards party. After October 17, this led to experiments in the arts and architecture. But many became disillusioned
Because of the censorship the party encouraged. Disillusion means पहले जो एक illusion बना हुआ था कि नहीं पार्टी बहुत अच्छी है, ओके, एक भ्रम सा बना हुआ था जो लोगों में, तो वो भ्रम उनका टूट गया. ओके, तो अब उनको उनकी सच्चाई सामने आ गई थी. बिकॉज द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज मीन्स उन्होंने जो भी कोई बोलता उसको वो पुलिस उसकी पिटाई करती, ओके, उसको जेल में डाल देती. तो वो एक तरह से सेंसरशिप हो गई थी कि जिसने भी आवाज उठाई उसको उन्होंने सप्रेस कर दिया. तो धीरे धीरे सब लोगों का ये जो इल्यूजन है वो टूट गया. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड? So after that the civil war started. Civil war means war within a state only. ठीक है, एक तो वॉर होता है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी. बट जब एक ही कंट्री के लोग आपस में छोटी छोटी बातों के लिए जब लड़ाई झगड़ा दंगा करते हैं तो वो होता है सिविल वॉर. सिविलियंस जब वॉर करते हैं, सिटीजन्स जब वॉर करते हैं आपस में. ओके, सो सच टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेज अराइज्ड इन रशिया. ओके, when the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. ठीक है, यहाँ से वो आर्मी जो है वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गई थी. सब लोग जो है वो एक साथ उनका सेम ओपिनियन नहीं होता था, सबका डिफरेंट ओपिनियन होने लग गया. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. इन सब लोगों ने जो बोल्शेविक का जो इस तरह से जो एक्शन था उसको उन्होंने कंडेम किया, मींस उसको क्रिटिसाइज किया. देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स, द रेड्स. ओके, अब जो रशिया में बोल्शेविक्स को तो रेड्स कहा जाने लगा बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसेस. एंड तो बोल्शेविक तो रेड थे. ओके, देन ड्यूरिंग 18 and 19 द ग्रीन्स मीन्स जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, तो वो उनको ग्रीन्स कहा जाता था. एंड वाइट्स जो प्रो जारिस्ट थे, ओके, जो मीन्स जार को फॉलो करते थे. ओके, सो कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. They were backed by French, American, British and Japanese troops. और ये बोल्शेविक ने कैप्चर कर लिया. जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उनका कैप्चर हो गया कहीं पे, और कुछ जगहों पे जो जार के जो लोग थे या जार को जो फॉलो करते थे तो उन्होंने रशिया को कैप्चर कर लिया. ठीक है, और इन सबको सपोर्ट मिला हुआ था फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और जापान से, वहाँ की ट्रूप से, वहाँ की आर्मी से. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. Means लूटमार होने लग गई. Banditry means डाकू जो होते हैं, okay, डकैती. And famine means that scarcity of food became very common. Then supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. अब यहाँ पे जो जार के जो सपोर्टर्स थे, वाइट्स कौन थे? वाइट्स तो जार के सपोर्टर्स थे. तो उन्होंने फाइनली क्या किया कि they took harsh steps with peasants who had seized land, because peasants ने जो नोबिलिटी की जो लैंड को सीज करके और अपनी खुद की लैंड बता के और एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, तो जो वाइट्स ने उनके अगेंस्ट बहुत हार्श स्टेप्स लिए. सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स. ठीक है, तो यहाँ पे वापस जो नॉन बोल्शेविक्स थे वहाँ का उनका लोगों में सपोर्ट कम होने लगा. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalities and Muslim Jadidis. क्योंकि वो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और मुस्लिम जो जदीदीस थे उनसे वो कॉपरेशन उनका हो गया. ओके, तो उनका सपोर्ट उन्हें मिल गया. Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. बट कहीं कहीं कॉपरेशन नहीं मिला. इन खीवा इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली
massacred local nationalists in the name of defending socialism. Because वहाँ पे support क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो socialism के नाम पे उन्होंने जो है brutally massacred local nationalist, मतलब जो local जो nationalist थे उनको बहुत massacre किया, means उनको मार डाला सबको. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. तो बहुत सारे लोग confuse हो गए रशिया में कि वाकई में बोल्शेविक पार्टी चाहती क्या थी. ठीक है, एक तरफ वो नेशनलिस्ट को मार रहे हैं, एक तरफ वो कुछ जगहों पर उनको नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिला हुआ है. तो वो बोल्शेविक्स कैसे थे फाइनली, तो इस बात पे सबको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया. Partly to remedy this, most non-Russian nationalities were given political autonomy in the Soviet Union. USSR, United States of Soviet Russia. Okay. जो भी यूनाइटेड स्टेट्स थे, रशिया के साथ साथ और भी जितनी भी कंट्रीज थी, जो सारे जो मिलके और यूनाइटेड हुए थे, वो जो स्टेट्स ओके जिन्होंने सब जगह सोवियत जो बनाकर और जो सोशलिस्ट कंट्रीज जो यूनाइटेड हुए थे, तो यहाँ पे उनको सबको ऑटोनॉमी दी गई. ओके, मींस फ्रीडम दी गई. द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशिया एम्पायर इन दिसंबर 1922. बिकॉज बोल्शेविक्स ने जो यूएसएसआर जो बनाया था वो रशियन एम्पायर से ही बनाया था. आगे हमने डिस्कस किया था कि रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था और कितना दूर दूर तक स्ट्रेच्ड था. ओके, वंस अगेन वी विल रिकॉल हियर हाउ द रशियन एम्पायर वाज इन 1914. सो रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ईस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस. ओके, so means it was stretched a lot, बहुत ज़्यादा ये stretched था. This was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism. Nomadic people वो होते हैं जो those who do not live in one place and they move from one area to another area to earn their livelihood. Nomadic people वो उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है कि वो एक किसी प्लेस पे वो रह नहीं सकते बहुत ज़्यादा दिनों तक. ठीक है, तो वो उनके साथ अगर उनको बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करेंगे, है ना, और अगर उनकी लाइफस्टाइल को अगर वो कोई चेंज करने के एफर्ट करेगा तो फाइनली वो सक्सेसफुल नहीं होगा. देयर अटेम्प्ट्स, बोल्शेविक के जो इस तरह के अटेम्प्ट्स थे, पार्शियली सक्सेसफुल हुए. सो टुडे वी एंड आवर डिस्कशन हियर. टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.